guys. I will just stop screen sharing. I will just talk with you guys for a minute before starting the game. Introduce both of you to the audience who have joined us live here today. Just let's stop the timer now. So we have with us today Aditi Srivastav. She's a mentor on Nurture platform. She's a very well-established chess coach as well on our platform. She loves teaching kids chess, and she loves chess, that's for sure. And we have with us Sandeep. Uh, Sandeep is my batchmate from college, and he has been sailing since last more than a decade now. So I realized yesterday only he plays a lot of a game on chess.com. So he reached out to me when I said that if anyone wants to play a live game against chess player. So I lost against Sandeep yesterday. So he's a good player. So it was my first game in 3 to 4 years. Definitely, it would give me next time. It would give me like sweat in my hand if I'm going to play against Sandeep. So welcome Sandeep and welcome Aditi. So Sandeep, आप कितने दिन से खेल रहे हो आप chess.com में? You are not a chess player. तो आप कितने दिन से खेल रहे हो? मैं तो ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2-3 महीने हुए होंगे. नॉट अ रेगुलर, कभी कभी खेलता हूँ. Okay. Well, your voice is zooming a lot. कुछ voice में दिक्कत आ रही है शायद. संदीप तुम्हारे. Hello. Hello. Is it hello? अदिति आपका वॉइस चेक करें एक बार. हेलो. आपका सही आ रहा है. संदीप का थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है वॉइस. अभी आ रहा है? ना ईयरफोन लगा लो कोई अगर है तो. 2 मिनट. हाँ. तो नॉन चेस प्लेयर्स के लिए कैसा लगता है तुम्हें कि उनको खेलना चाहिए चेस की नहीं खेलना चाहिए? क्योंकि हमको तो लगता है कि सबको खेलना चाहिए चेस. या बिल्कुल सबको खेलना चाहिए क्योंकि चेस तो बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है हमको. लाइक हमारा डिसीजन मेकिंग काफी अच्छा हो जाता है चेस खेलने से. दूसरा, हमें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहता. ये एक लाइक एंटी डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग है. लाइक कभी डिप्रेशन नहीं होगा. The best part is for someone who is sailing 7 to 8 months in a year, they stay away from their family. So, like one of the reason I left shipping was it was very hard for me to stay away from my loved ones. So I decided that I cannot be a good sailor. So I left shipping because of that only. But people who continued sailing remain away from their family for 7 to 8 months. So for them also, they can actually, chess is such a beautiful game that they can play when they are on ship as well. Yeah. So, yes. In every profession, chess is best. Like if you play, it really helps. So I guess we should start the game. You guys start the game. Once you guys are ready, just let me know. I will share the game screen. So Aditi, once you join, tell me when you are ready. Yeah, I'm joining the link. Okay, you join the link. You guys start. So I will share the link from the chat box. Okay, I have joined. Okay, so you guys can start. Meanwhile, I will share the screen. You can minimize the Zoom window, Zoom app, and play the game. All the best. Thank you. Okay, thank you. All the best, Sandeep sir. All the best to you too, Aditi. Sandeep is a very good cricket player. Wow. So there is also a history. मैं बताऊंगा वो हिस्ट्री कुछ देर में. संदीप आराम से खेलना. ये गेम सच में चेस प्लेयर से
हाँ सोच के ही खेलना।
अरे गलत में बोल गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा चल रहा है गेम अभी तो। अदिति बहुत खुश हो रही है। नो नो, अरे गलत में बोल गया। सो अदिति, एज ए चेस कोच तुम्हें क्या लगता है कि कितना टाइम देने से जो प्रोफेशनल्स हैं लाइक संदीप, दे कैन इम्प्रूव इन चेस अ लॉट? लाइक कितना एक्चुअली टाइम देना चाहिए इनको चेस में अगर अच्छा प्लेयर बनना चाहते हैं? 1 or 2 hours, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी वर्क है, सो लाइक 1 or 2 hours वुड बी फाइन। तो 1 से 2 घंटा संदीप अगर आप देंगे तो आप क्या पता 1-2 साल बाद एक ग्रैंड मास्टर को भी टक्कर दे सकते हैं। अदिति को कितने दिन हो गए खेलते हुए? मैं लाइक मुझे 6-7 या 8 years हो चुके हैं खेलते हुए, बट बीच बीच में थोड़ा गैप होता जा रहा था मेरा। अदिति ने कर दिया है अटैक रानी पे तुम्हारी। अभी क्वीन तो नहीं जा रही है, बट कल बोल रहा था ये कि मैं तो ग्रैंड मास्टर ऑफ शिप हूँ, मैं देख लूंगा अच्छा। सारे चेस प्ले। और क्या क्या बोल रहे थे? धीरे धीरे बताएंगे। अरे यार, ये तो हम देखे नहीं। अब इसमें चॉइस है तुम्हारे पास, तुम क्या बचाना चाहोगे, तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हारे प्यार की परीक्षा है कि आप या फिर कौन सा पीस ज्यादा अच्छा काम कर सकता है फ्यूचर में। आगे चल। कुछ प्लेयर्स नाइट से खेलना पसंद करते हैं तो वो नाइट पे चाहते हैं, कुछ को बिशप में एक्सपर्टीज होती है, ऊंट को बिशप बोलते हैं जस्ट इन केस। ओके, बिशप बचा के खेलना है। गलत हो गया। तो एक इसी बात पे इसी आज़ादी मिली है एक पॉन को उसी उसमें। तो जस्ट एक हमारे एक सब्सक्राइबर हैं
वो ही इज अराउंड 55-56 ईयर ओल्ड। उन्होंने 1.5 साल पहले ही सीखना स्टार्ट किया। तो मतलब आफ्टर कि थोड़ा जॉब में कुछ वो आ गया, आराम मिल गया, तब इतना लेट खेलना सीखना स्टार्ट किया। ऐसे हॉबी के लिए खेलते थे, बट उनके कोचेस बोल रहे हैं कि अब उनकी स्ट्रेंथ करीब 2000 के अराउंड हो गई है 1-1.5 साल में। तो ये जब जब वो जाते हैं यूएस में टूर्नामेंट खेलने, तो अच्छे अच्छे मतलब जीत तो नहीं पाते, क्योंकि वहाँ स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट खेलते हैं जहाँ पे नेशनल मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर्स, जीएम्स आते हैं, पर काफी अच्छा गेम खेल रहे हैं। जहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ का लेवल बताया जा रहा है कि 2000 तक हो गया। तो द ब्यूटी ऑफ द गेम इज जितना भी लेट सीखना स्टार्ट करो, आप एक अच्छे प्लेयर बन सकते हो कभी भी। तो इवन संदीप भी अगर स्टार्ट करे सीखना थोड़ा थोड़ा, आधा घंटा डेली, मुझे लगता है कि ये 5-6-7 साल में अच्छा प्लेयर बन सकता है, क्योंकि शिप में टाइम होता है इन सब चीजों के लिए। आप बाकी में चीजों में टाइम ना वेस्ट करके थोड़ा सा अपने ऊपर टाइम लगाएं, जिन चीजों में दिमाग तेज हो सकता है, उससे आगे चल के भी बहुत फायदा होता है। क्योंकि डिमेंशिया की प्रॉब्लम काफी रहती है इवन इंडिया में, जो चेस खेलने वालों को कभी नहीं होती भी नहीं होती। लोगों को इसीलिए सिखाया जाता है चेस खेलना यूएस में कई ओल्ड एज होम्स में, कि वो डिमेंशिया की प्रॉब्लम ना हो उनको आगे चल के। तो ये एक मेडिकल रीजन भी है। एंड सेलिंग इज अ साइकोलॉजिकली वेरी टफ जॉब जहाँ पे आता है, एंड चेस एसेंशियली मेक्स योर माइंड वेरी स्ट्रांग। तो वहां पे भी इसका एक फायदा रहता है। काफी कल मेरा एक बैचमेट है, हम दोनों का स्टोरी बता रहा था कि शिप पे उसका एक क्रू था जो कि ग्रैंड मास्टर से ट्रेनिंग लेता था, तो वो सबको हरा देता था। शिप पे एक चेस बोर्ड लेके आता था, तो सबको हरा देता था। तो ऐसी ऐसी स्टोरी आती हैं जो which makes us smile and think that chess is really a game which is made for everyone. और अभी तक जहां देखा मैंने, संदीप ने खराब गेम नहीं खेला, एकदम नहीं खेला, खराब नहीं खेला, अच्छा खेला है और अच्छा खेल रहा है। अदिति को टाइम ट्रबल में डाल दिया संदीप ने, मैंने भी अपनी कमेंट्री से अपनी। तो जो लोग लेट ज्वाइन किए उनको बता दूं कि हमारे संदीप जी जो कि एक सेलर हैं, वो वाइट से खेल रहे हैं, और अदिति जी है जो कि एक चेस प्लेयर हैं, श्री अदिति जी, वो ब्लैक से खेल रही हैं। तो काफी लोग चैट पे पूछ रहे थे कि संदीप के फैन कि संदीप वाइट है क्या, तो संदीप वाइट है। आपके दोस्तों ने अनुमान लगा लिया था, गेम देख के लग रहा है कि आप वाइट है। तो मिश्रा जी, अगर आप गेम देख रहे हैं तो संदीप, आप सही कह रहे हैं कि संदीप जी वाइट है। और मैं हार रहा हूँ बुरी तरह से। काफी लोगों ने साइन अप ही नहीं किया था, पूरे बैच में फ्लोट कराया है फॉर्म, संदीप ने ही खाली साइन अप किया इसके लिए, किसने नहीं किया? और अतुल ने किया है उसके बाद।
तो डिफिकल्ट हो रहा है। एंड गेम में पहुंच चुके हैं, ये रूक और बिशप एंड गेम होने वाला है। और संदीप के लिए खाली रुक एंड गेम है। ओह, बहुत अच्छा गेम था, नाइस मैच। तो संदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए, गेम के लिए। और मैं आपका एक गेम देख के बहुत सारे हमारे मित्रजन और दूसरे प्रोफेशन के काफी लोग काफी ज्यादा उत्साहित होंगे खेलने के लिए। लोगों में डर रहता है खेलने का, पर चेस में क्या होता है ना, जब तक आप खेलेंगे नहीं, जब तक आप सीखेंगे नहीं। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उसी से आती है कि आप खेलते रहें, सीखते रहें। एंड इट्स नेवर टू लेट टू लर्न चेस। लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड प्लेइंग रियली लेट और बहुत अच्छे प्लेयर बन गए हैं। और लाइफ में क्या होता है, जब कैरियर के आप उस मुकाम को हासिल करते हो तो कई बार एक पैशन खोजना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा पैशन हो सकता है चेस, क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ के, मैं और संदीप की बात करूं, उस स्टेज में है कि आगे चल के कभी फैमिली भी स्टार्ट होगी, बच्चे भी होंगे, उनको भी चेस सिखाना चाहिए, अपने घर के बुजुर्गों के साथ भी खेलना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ watching TikTok videos or playing PUBG, chess can be a very good alternative for everyone. And आप अदिति कुछ बोलना चाहेंगी? उसके बाद लाइक गेम, थोड़ा सा मैं गेम देखना चाहूंगी वापस से शुरू से। हाँ, आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए। तो संदीप को बहुत क्योंकि नोटेशन उतनी नहीं पता होंगी, तो आप बेसिक अगर समझा दें कि संदीप ने कहाँ गलती की। ओके, सो लाइक मेरा बोर्ड विजिबल है ना? जी, बोर्ड विजिबल। एक मिनट बस। तो लाइक आपने क्वींस पॉन ओपनिंग से स्टार्ट किया था, अच्छा था, लाइक C4 क्वींस गैम्बिट। बट यहाँ पे मैंने स्लैब डिफेंस खेला और इसके अगेंस्ट में ज्यादातर लोग जो प्रेफर करते हैं या तो नाइट ये निकालते हैं या फिर नाइट ये निकाल के खेलते हैं या पॉन चलते हैं। आपने ये पॉन एकदम से बढ़ा दिया है, एकदम से मतलब पॉन एडवांस करना, इस मतलब शुरू में ही ज्यादा आगे बढ़ा देना पॉन को खतरा हो जाता है, क्योंकि पॉन के मूव ऐसे होते हैं, एक बार हमने फॉरवर्ड चल दिया तो हम कभी उनको पीछे नहीं ले पाते। तो हमें पॉन का मूव थोड़ा सोच समझ के। इसमें मुझे क्या फायदा हो गया था, यहाँ पे मैं ये चाल सोच रही थी पर मैंने खेला नहीं। एक ये चाल भी चल सकती थी मैं, E5। तो लाइक अगर आप कैप्चर करते तो मैं आपका ये वाला पॉन पहले कैप्चर करती और यहाँ डबल पॉन क्रिएट हो जाते और फिर मैं कभी भी अटैक कर सकती थी। उसके अलावा लाइक यहाँ पर मैंने लेकिन नाइट से खेला, मैंने थोड़ा पैसिव ही खेला, मैंने सोचा कोई गड़बड़ ना करूं शुरू में। तो इधर यूजुअली मैं ये बिशप बाहर कभी नहीं निकालती, इस साइड से मैं B7 से निकालती हूँ, पर क्योंकि आपका पॉन यहाँ पे C5 पे आ चुका था तो मैंने फिर बिशप को पहले ही डेवलप कर लिया। मैं ये सोच रही थी कि अब मैं यहाँ से नाइट को मार के अब शायद पॉन आगे बढ़ूं, ऐसा करके सोच रही थी। बट फिर आपने यहाँ बहुत अच्छा खेला, ठीक है। इस मूव पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नाइट और ये क्वीन, इस नाइट को डोमिनेट मतलब थोड़ा सा एक्सप्लॉइट कर सकते थे। तो ये बिशप यहाँ होना अच्छा रहता उसके लिए। जी जी। तो लाइक
यहाँ पे जो खेला इनने, मैंने थोड़ा सा वेट किया इस मूव के लिए। मैंने सोचा मैं अपना बिशप भी डेवलप करूंगी, और लाइक ये पॉन चल गए तो ये बिशप साथ में पीछे जाता, और फिर मैं यहाँ से डेवलप करूंगी, मैं ऐसा प्लान कर रही थी लाइक। पर फिर उसके बाद आपने ये थोड़ा जो पॉन चल दिया, इसने क्या इसका घर रोक दिया यहाँ वापस आने का। और जब ये घर रुक गया तो फिर मैंने क्वीन ले आई यहाँ पे इस नाइट को खेलने के लिए। तो लाइक मुझे पर्सनली ये दो चालें थोड़ी सी लाइक C5 और E6 थोड़ी सी वो थी, यहाँ पे गुड मूव्स नहीं थी, बट गेम काफी अच्छा खेला है। लाइक मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मुझे लगा कि आप लाइक पूरे टाइम मतलब सेलिंग में बिजी रहते होगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता होगा, लेकिन उस हिसाब से आपने बहुत अच्छा खेला। ये मूव मुझे अच्छा लगा क्योंकि लाइक क्वीन को हटा रहा था। यहाँ पे मैंने सोचा था कि यहाँ पे मैं नाइट मार लूंगी, यहाँ मैं नाइट मारती, आप मेरी क्वीन मारते और फिर मैं नाइट से क्वीन, तो इक्वल ही रहता, बट ये डबल पॉन हो जाते। बट यहाँ पे आपको क्या फायदा मिलता, ये फाइल ओपन हो जाती, तो हो सकता था आप रुक लागे कुछ करते, इसलिए फिर मैंने वापस लेना सही समझा। लाइक ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया, पहले मैंने भी गलत सोच लिया था शायद। फिर ये क्वीन एक्चुअली मैं यहाँ सोच रही थी कि नाइट मार दूं डबल पॉन के लिए, बट फिर मुझे एक अच्छी चाल दिखी, ये क्वीन मतलब डिस्कवर अटैक के लिए तैयार हो गया था मेरा बिशप। तो आप मेरा नाइट भी नहीं मार सकते थे, आपके नाइट से मेरा नाइट मारते तो मैं फोक दे देती पॉन से मार के, और क्वीन आप कहीं हट नहीं सकते थे, क्योंकि आपको इस नाइट को अगर बचाना है तो आपको या तो यहाँ तो आना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरा नाइट बैठा हुआ है। और दूसरा अगर आप यहीं पे जाते तो भी मेरा डायगोनल पूरा कवर किया हुआ है बिशप। तो यहाँ पे आपने मेरे बिशप पे अटैक किया, ये अच्छा था, बट मेरा बिशप तब भी डायगोनल पकड़ा ही हुआ था। अभी भी अगर आप मारते, अभी यहाँ प्रॉब्लम ये होगी ना, इस मूव के बाद से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई क्वीन के बाद से, उससे अच्छा आप पहले ही नाइट एक्सचेंज, पहले शायद नहीं हो रहा था, हाँ यहाँ पे नाइट एक्सचेंज नहीं हो रहा था, लेकिन आप नाइट को थोड़ा सपोर्ट दे सकते थे। बट यहाँ पे इधर से थोड़ी गड़बड़ हो गई ये कि अब यहाँ पे यही हो रहा था कि या तो आप क्वीन बचाते, आपने नाइट मारा जैसे ही, तो यहाँ आपको क्वीन बचाना जरूरी हो गया था, और क्वीन बची और यहाँ आपका पीस चला गया। ये चीज भी थोड़ी सी शायद ओवरलुक हो गई आपसे। बाकी संदीप का माइक ऑफ है शायद। अच्छा, संदीप कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गया, मैं बोल रहा था। हाँ यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, नहीं तो बाकी बहुत अच्छा खेला। लाइक आपने इस मूव के बाद जब आपका पीस गया उसके बाद भी अच्छा खेला। नहीं एक्चुअली तो मैं जानना चाहता हूँ कि एज ए कोच आपको क्या लगता है कि संदीप अपना गेम कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, किस लेवल तक? अगर मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, संदीप 8 महीना सेलिंग करते हैं, 4 महीने घर पे रहते हैं, जो परिवार के साथ समय रहता है उसमें भी काफी समय अपने लिए निकाल सकता है इंसान, और सेलिंग में भी उस ओहदे पे पहुंच गए संदीप की मुझे नहीं लगता, अगर 1 साल बाद शायद मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इंजन रूम में जानने की जरूरत पड़ेगी संदीप को, तो उस समय भी काफी समय निकाल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस लेवल के प्लेयर बन सकते हैं संदीप? ये डिपेंड करता है, लाइक वैसे तो अगर ये 1-2 घंटे भी देंगे चेस को और प्रॉपरली, जैसे मैंने भी नर्चर पे काफी सारे प्रोडक्ट्स देखे हैं लाइक पजल और एंड गेम्स को लेके, तो अगर आप ओपनिंग मिडिल एंड गेम कभी कभी 1-1 घंटा दे देंगे उसको, तो लाइक अच्छा खेल सकता है, बहुत अच्छा खेल सकता है। 2000 प्लस आराम से आपकी रेटिंग जा सकती है। अभी लाइक मैं 1-8 साल की बात कर रही हूँ, 1-2 साल में आप आराम से अचीव कर लेंगे, वो ज्यादा टफ नहीं है। और संदीप, जिसको नहीं पता कि चेस में लेवल होता है रेटिंग, आपको रेटिंग सिस्टम पता है संदीप? हाँ, चेस में क्या पता है। 2500 पे ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं कुछ नॉर्म्स क्लियर करके, 2400 पे इंटरनेशनल मास्टर, एक 2000 रेटेड प्लेयर को अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग प्लेयर माना जाता है। तो आप मतलब एक कोच के हिसाब से उनको लगता है कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं गेम, और मैं तो ये बोलूंगा खेलते रहिए, सीखते रहिए, और बहुत जल्द हम मिलेंगे दोबारा। बिल्कुल। Thank you Sandeep for taking a courage to play against a seasoned chess player and playing a very very nice game, and thank you Aditi also for the same, taking your time out thank you Sandeep in your busy schedule. Thank you Aditi. So we'll see you again shortly guys, and for all the audience who want to play, just reach out to us and we'll be happy to help you in the game arena
to play against seasoned chess player. If you are a professional, and or if you are a chess player who wants to play against professionals of different profession, do reach out to us. Thank you, everyone. I will see you next time.